ویلکم بیک ناظرین. ظاہر ہے ہم بات یہاں یہی کر رہے ہیں کہ مردم شماری کے بغیر اس ملک کے مسائل کے اوپر کیسے نگاہ ڈالی جا سکے گی. اگر مسائل کا ہی نہیں پتا تو وسائل کو کیسے بروئے کار لایا جائے گا. مقتدی صاحب, ہمارے ہاں مردم شماری سے نقصان کس کو ہے؟ سیاسی جماعتوں کو ہو رہا ہے, وفاق کو ہو رہا ہے, کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ نقصان مجھے اور آپ کو ہو رہا ہے کہ ہمیں وسائل تک ہم تک رسائی نہیں ہو پا رہی ہے. دیکھیے مسئلہ وہی ہو جا رہا ہے. کراچی کی اگر صحیح بانے میں دیکھیے, کراچی کی آبادی 98 لیکس تھی, جو 98 کے اس میں 90 92 93 مطلب کروڑ سے کم تھی. آج کہا جاتا ہے 2.25 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ ایک فارمولہ بناتے ہیں کہ بھئی 3 لاکھ کے اوپر ایک ایم این اے ہوگا تو آپ کے کتنے ایم این اے بنیں گے, تو پوزیشن کیا چینج ہوگی. میں اس میں بھی آپ کو ایک اکنامک پوائنٹ بھی بتاؤں گا ابھی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے بعد ایک اکنامک سروے ہوتا ہے. بڑی دلچسپ اور المناک صورتحال کیا ہے کہ 1951 کا جو سینسس ہوا تھا اس کے بعد کراچی کا اکنامک سروے ہوا تھا. بالکل ٹھیک, صرف ایک, اور اونلی 1 سٹی. اس کے بعد کوئی اکنامک سروے نہیں ہوا اور اس کے علاوہ کسی شہر کا بھی نہیں ہوا, کیونکہ کراچی گروئنگ انڈسٹریل سٹی تھا. تو ادھر ہی آپ نے اچھا, اس میں آپ کو پتہ کیا چلتا ہے کہ بھئی دیکھیے آپ کی اس وقت کتنی انڈسٹری ہے, انڈسٹری کون کون سی نوعیت کی ہے, وہ کتنا پروڈکشن دے رہی ہے, کیسے آگے بڑھے گی. پی آئی ڈی سی اس وقت ایک ایکسپرٹ پوائنٹ آف ویو سے تھا کہ پی آئی ڈی سی بنائی گئی تھی پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن کے پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے. اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ یہ انڈسٹری کے اندر ایکسپرٹس کے ساتھ لگا کر پرائیویٹ سیکٹر کو دے گی, یعنی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہوئے پھر آہستہ آہستہ اسے ٹرانسفر کرے گی, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو بعض چیزوں میں ایکسپرٹی نہیں ہوتی. لیکن اس ادارے کو بھی کرپشن کا ذریعہ بنا دیا گیا. اس ادارے نے اب کام یہ چھوڑ دیا. پی آئی ڈی سی صرف محض جو ہے ہاتھی کے دانت رہ گئی ہے. تو بہت سارے آپ کے کام جو ہے, یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا کہ سینسس نہ ہونے کی وجہ سے. اب مثال تو میں ایک چھوٹی اور مثال آپ کو دوں اکنامک. فار ایگزامپل سندھ میں یہ کہا جاتا ہے جنرلی کہ جی پختون یہاں پر ٹرانسفر ہو رہے ہیں وہاں سے, پنجاب سے لوگ جو ہے صدران جیل لیبر کے لیے آ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے اگر یہ ایک سین لوگ ہوں, یہاں لیڈرشپ ذہنی طور پر عقل مند ہوں, بالغ ذہن لوگ اور چیزوں کو سمجھتے ہوں, ان کی باریکیوں کو, تو یہ جھگڑے بھی نہ ہوں. یہ جھگڑے لسانے کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ کلیشز کے آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں منصوبہ ساز بن کر, وہ پلاننگ نہیں کر رہے ہیں. منصوبہ سازی کا مطلب ہی پلاننگ ہوتا ہے. آپ یہ سروے ہوگا تو اس کے بعد آپ نے پتہ چلا کہ اتنے لاکھ پختونخوا سے آیا, تو بھائی جب وہ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر پاپولیشن کا ایک کمی پیدا ہوئی. تو آپ جو پہلے سے وسائل طے ہیں ان وسائل میں سے کچھ وسائل یہاں دیں, اور پھر اس کی ڈوئل نیشنلٹی کو ختم کریں. مطلب اس کے لیے ایک فارمولیشن بنائیں کہ یا تو وہ کام کے لیے آئے. دیکھیے کام کے لیے روک نہیں سکتے آپ کسی کو. جس طرح میں نے کئی بار یہ کہا, قوم پرستوں سے بھی کہا کہ مثال کے طور پر اگر بنگالی آ رہا ہے تو آپ اس کا روزگار کو چھین کر دھکیل نہیں سکتے. دنیا میں جاتے ہیں لوگ, انڈیا میں ممبئی میں پورا ہندوستان موجود ہے. دبئی کو دیکھیں نا, دبئی کو دیکھیں آپ. اب اس کو روکنا نہیں ہے آپ کو, آپ نے کرنا یہ اس کے لیے ایسی فارمولیشن کرنی ہے کہ جو پولیٹیکل رائٹس ہیں لوگوں کے, شہریوں کے, جو سوشل رائٹس ہیں وہ ڈیمیج نہ ہونے پائیں. تو اگر وہ یہاں پر ووٹر بننا, اب انگلینڈ وغیرہ کے اندر آپ جائیے, جو امریکہ میں جائیے, ایک فارمولہ ہے. پہلے آپ کو ملتا ہے گرین کارڈ, اس میں آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے ووٹنگ کا, کوئی رائٹ نہیں ہے. آپ کو صرف وہاں رہ کر جاب کرنے کا رائٹ ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو جیسے گرین کارڈ ملتا ہے آپ کو سوشل سیکورٹی کے پیسے کٹوانے ہیں, تاکہ آپ جو ہے اگر بیمار پڑیں, آپ کو ضرورت پڑے, آپ کے بچوں کی تعلیم کی ہو, تو آپ کو وہ اس سوشل اکوموڈیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی ایک وہ سرٹن پیریڈ کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کا, تو وہ آپ کو ایک سٹیزن شپ دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے اور آپ ووٹر بھی بن جاتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ کوئی ایسا نہیں ہے. بعض اوقات آپ کا ایک بندہ یہاں پر بھی ہے اور اپنے گاؤں میں بھی ووٹر ہے, یہاں پر بھی رجسٹرڈ ہے, وہاں پر بھی رجسٹرڈ ہے. یہ تو بات آپ نے بڑی انٹرسٹنگ کی ہے, لیکن یہ تو بہت آئیڈیل قسم کا فارمولا ہے. آئیڈیل قسم کا نہیں ہے, یہ پریکٹیکل ہے, دنیا میں ہو رہا ہے. دیکھیے نا, آپ نے اپنے معاملات, دیکھیے وہ آپ انہیں بال ٹھاکرے کو تو آپ ایک ہندو ایکسٹریمسٹ کے طور پر دیکھتے ہیں. جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی کافی پہلے, تو یہی بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا دیکھیے مہاراشٹر کے ساتھ زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پر پورا ہندوستان آ رہا ہے, فلم انڈسٹری بھی ہے, بڑی انڈسٹری بمبئی میں, تو مہاراشٹر کا جو مراٹھی جو بیس ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اصل میں وہ مراٹھی نیشنلزم کی بنیاد میں تھا, جس کو کہ وہ جا کر وہ شیو سینا بنی اور یہ بنا. ان کا پرابلم پھر وہی آتی ہے, اس کو ریزالو کیا. اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ 1985 تک انتہائی شکار تھا بدامنی کا بمبئی,
जैसे ये है। लेकिन उन्होंने 2-3 काम किए जिसमें हम अभी बात जब करेंगे उसको लोकल गवर्नमेंट पे, कि उन्होंने पुलिस को जो है वो लोकलाइज किया, उन्होंने तमाम चीज़ें की, और उन्होंने ये कहा, अभी अमिताभ जब वो जिंदा थे, क्या नाम है हमारे, ये बाल ठाकरे साहब, उन्होंने अमिताभ से कहा था कि भाई या तो तुम राय बरेली को अपना बनाओ और या फिर बॉम्बे में, मतलब एक जगह तुम रजिस्टर या तो इलाहाबाद में रहें या यार, बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ जो है इसको भी हमें मद्देनजर रखना। लेकिन मुक्तदी साहब, मैं आपसे यही देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये बड़ी मुझे आइडियल बात लग रही है, ये प्रैक्टिस नहीं हो सकती ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं आपको बड़ी क्लियरली क्यों नहीं होगी? मतलब या तो पाकिस्तान के अंदर आप समझ लें कि मैच्योरिटी नहीं है। सर मैच्योरिटी की बात नहीं है मुक्तदी साहब, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ, मुझे आप बताएं ना मैच्योरिटी किधर है? यहाँ 18 साल से तो आपने इस बात पर यकीन ही नहीं किया कि भाई आपने मर्दमशुमारी करनी भी है। कर दिया गया है, ये चीजें आइडियलाइज नहीं दुनिया सर में हो आप, रहा है। अच्छा अब हम कराची पे आए, आप मुझे बताएं कराची इस वक्त कितना बर्डन उठा रहा है? भाई वही मसला है, वो क्यों है कि लाहौर बर्डन उठा रहा है, मेन सिटीज उठा रही हैं वो बर्डन। कराची लाहौर का ही नहीं है इस वक्त जो है, फैसलाबाद 18 सालों के बिल्कुल अंदर ठीक है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, हैदराबाद। अब देखिए इंडिया में एक फार्मूला बना 1992 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट का नंबर है 73 एंड 74। मैं तो जिसको पढ़ना है पढ़ ले। उसमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया। उन्होंने कहा कि जो शहर 1 मिलियन एंड प्लस यानी सेंसस होगा, ओके, उसके बाद 1 मिलियन यानी 10 लाख और एबव हो जाएगा, उसे मेट्रोपॉलिटन दर्जा दे दिया जाएगा, यानी वहाँ का मेयर बाइख्तियार होगा। जो उससे छोटा होगा वो नहीं होगा। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि जो कदीमी एक सिस्टम था पंचायत का, जो कि लोग बैठ के करते थे फैसले, उन्होंने देहात की सतह पर उसे इलेक्टेड कर दिया कि पंचायत जो है देहात की, और शहर के अंदर यूनियन कमेटी बना दी। मतलब वहाँ पंचायत तो नहीं बने, वो कमेटी बना दी, और उसका जो स्ट्रक्चर रखा वो हमारे यहाँ तो 50,000 आबादी पर है ना, उन्होंने रखा 10 से 15,000 आबादी पर। अब वो पंचायत भी इलेक्टेड है, इसके अंदर खवातीन नुमाइंदगी भी है, किसान नुमाइंदगी भी है, और वो जो मुखिया का कॉन्सेप्ट था उसकी जगह वो ले आया उसका चेयरमैन। मुखिया खत्म कर दिया, जो मुखिया एक होता था वो बादशाह बन के बैठ जाता था, तो वो उन्होंने डेमोक्रेटाइज कर दिया उसको। हमें देखना चाहिए, दुनिया में स्टडी करनी चाहिए किस तरह से कर रहे हैं, और उस निज़ाम को वो आगे बढ़ाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा ला रहे हैं। अब मुंबई के अंदर पुलिस चीफ जो है वो अंडर में आता है मेयर के, और लोकलाइज्ड पुलिस है। तो जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर मेयर का जब मैंने इंटरव्यू किया 2006 के अंदर, तो मेयर ने मुझसे कहा कि यहाँ पर कोई खातून टैक्सी में रात 2 बजे पूरा जेवर पहन के जाए, उसके साथ कोई बलात्कार नहीं होगा जब तक कि वो खुद ख़राब ना हो, और टैक्सी ड्राइवर इज़ बाउंड टू उसको सेफ एंड साउंड छोड़कर है। ठीक है, मैंने जब इसका सवाल किया अखबार वाले से, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। वजह क्या है कि पुलिस जब लोकलाइज होगी तो पुलिस रिस्पॉन्सिबल होती है, बिल्कुल ठीक है, और उसको मालूमात होती है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ किस तरह के रवैये रवा रखने। लेकिन मुक्तदी साहब, सवाल फिर घूम फिर के वहीं आ जाएगा। देखिए, मुझे सीधा जवाब अगर आप इस वक्त बताएं ताकि हम आगे निकलें, मुझे ये बताएं, ये मर्दमशुमारी से सियासी जमातें नुकसान देख रही हैं? क्योंकि जाहिर है हल्का बंदियों पर सवाल उठते हैं, और फिर अल्टीमेटली इंतखाबात के अमल से पहले, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा पैसा खूब लगा है, आज चीफ शुमारियात ने फिर कहा है 50 करोड़ रुपए, ये किसी और के नहीं, मेरे और आपकी जेब से निकला हुआ टैक्स का पैसा जाएगा। लेकिन हमारे इसके नतीजे में इससे हमारा जो बेनिफिट्स आते हैं वो कितने ज़्यादा हैं। प्रॉब्लम क्या है सियासी जमातों को? देखिए, मसला ये है कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल कंपोजिशन है बहुत से इलाकों की चेंज हो जाएगी। मतलब सीटें चेंज होंगी। अच्छा, फिर एक और खौफ भी है, जो पॉलिटिकल प्रेशर आएंगे। मिसाल तौर पर पख्तूनख्वा के पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेंगी कि उनके रिसोर्सेज सिंध में शिफ्ट आएँ, क्योंकि जब लोग आ रहे हैं, अब आपने लगाया 18 साल में कितनी पॉपुलेशन शिफ्ट हुई, इतना जो अमाउंट जो है इधर आना, मतलब इंसाफ का तकादा तो यही है ना। आप अगर जस्टिस को देखें और लॉ के हवाले से देखें कि भाई आपके यहाँ से पॉपुलेशन इतनी हो गई, परसेंटेज ये इधर शिफ्ट हो गई, पंजाब से, सदरन पंजाब से या किसी भी इतने लोग आ गए, तो उनको उनके एकोमोडेट होना है ना उस जगह पर। अच्छा, अब आप सिंध को कहें कि नहीं आपको तो 23% ही मिलेगा, तो जब 23% मिलेगा तो फिर वो कहेगा सिंध के रोको रास्ता। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें क्लैशेज आ रहे हैं, ये इमेच्योरिटी के आ रहे हैं। अगर प्लानिंग हो, मुनाफकत ना हो, क्लैरिटी ऑफ माइंड हो, और इनका विजन आज के मुताबिक हो। और मैं एक जुमला बार बार तुम्हारे प्रोग्राम में कहता रहा हूँ असना, कि हमारे पॉलिटिशियंस को टेक्नो पॉलिटिक्स नहीं आती, और आज की दुनिया टेक्नो पॉलिटिक्स की दुनिया है। आज जो है ना, मैं वडेरा हूँ इसलिए बासर हूँ, जीत के आ गया हूँ, लेकिन उन चीज़ों की टेक्नोलॉजीज़ को समझना, उनकी टेक्निक्स को समझना, और ये एक टेक्निकल इशू है। तो इस पर बैठ कर एक डिसाइड कर लें, इस पर जो है अपने
नंबर स्कोरिंग करना, पॉइंट स्कोरिंग करना जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है। ये एक चीज़ ज़ाहिर है, आपने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है मुख्तदिर साहब, किसी भी स्टेट में अमेरिका से यूरोप की बात कर लें या फिर आप अपने पड़ोसी मुल्क की बात कर लें, अफ्रीका के गरीब मुल्कों में सेंसस होता है। और उसमें एक चीज़ जो मैं कहना चाह रही थी मुख्तदिर साहब, आप जैसे मैं अगर यहाँ इस वक्त किसी सेंटर के एरिया के अंदर बैठी हूँ, तो मुझे अगर दूसरे एरिया के लिए जाना है तो मुझे वहाँ पर पासपोर्ट, उनका वीज़ा चाहिए होगा उस एरिया में एंट्री के लिए। कराची या पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में जाने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सना एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊँ, प्रैक्टिस हो रही है। आप आज़ाद कश्मीर जाएं, किराए पर मकान रहकर 50 साल रह लें, लेकिन प्रॉपर्टी यही इंडियन उसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि कोई भी, और बीजेपी का जो असल लड़ाई हो रही है और जो वहाँ पर वो यही है कि वो कश्मीरी के वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका बोल रहा हूँ शिक जो है वो कौन सी है, मुझे ज़हन में आ जाएगी, 48 या कुछ ऐसी है, जिसके तहत जो है कश्मीर की एक हैसियत है उनके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत कोई भी शख्स जाकर कश्मीर की वैली में नहीं ले सकता। अब ये इस किस्म की चीजें जो है की जा सकती हैं, मतलब स्टेप्स, हाँ, ये नहीं कहता मतलब हूं, अच्छा मैं एक और बात भी कहता हूं, इनह्यूमन स्टेप भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी स्टेप ना करें कि जिससे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो और लोगों को जो है उनका रोजगार से, यानी आप ये डिसाइड कर लें कि सब लोगों को उठा के वापस भेज देंगे, हाँ, कहाँ जाएंगे, क्या होगा। जिस तरह से आप बर्मा में देखा आपने कि जो कश्तियों में थे बिल्कुल ठीक, तो ये जो है ये इनह्यूमन, हम किसी भी इनह्यूमन एक्ट की हिमायत नहीं करेंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये होगी कि तमाम चीज़ें क्लैरिटी के साथ आ जाएं, कहाँ पर क्या है, और उसके मुताबिक सर जोड़कर बैठो। बिल्कुल ठीक है। और नेशनल इश्यूज पर जब तक सर जोड़कर तमाम पार्टीज नहीं बैठेंगी, उसको पॉलिटिक्स करेंगी, और ये खालिसतन टेक्निकल एंड द नेशनल इशू इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, यानी सेंसस इज टेक्निकल इशू है और नेशनल इशू है, लेकिन पॉलिटिकल बनाया जा रहा है, बट इट इज नॉट, और दुनिया में कहीं नहीं है पॉलिटिकल। बिल्कुल ठीक है। अब जरा सा मुझे समझने के लिए और मेरे नाज़रीन के लिए भी, फिर हम आगे अब फिर बिलखुसूस बल्दियात पे बात करेंगे, लेकिन पहले ये चैप्टर क्लोज कर दूं मैं यहाँ से। मुझे ये बताइएगा कि जो इस वक्त सूरत हाल है मर्दमशुमारी की, तैयारियां क्या होती हैं इस पे? आपको, जैसे आपने मुझे कहा कि स्कूल्स के और इन सारे लोगों को चाहिए, क्या हम समझते हैं कि हमारे पास वो ट्रेन लोग नहीं है, या अगर अब आपने मौखिर कर दी है तो इस दौरान आप हायरिंग कर लें उन लोगों की ताकि आप उनको ट्रेन कर सकें? तैयारी दो तरह से होती है। देखिए, एक तो होती है इसकी पूरा का पूरा जो है ना, इसकी प्लानिंग होती है पूरा, कि किस तरह से प्लानिंग करनी है, किस तरह से जाना है, इसके स्टेप्स क्या होंगे, फेजेस क्या होंगी, एक प्लानिंग होती है। प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन है उसकी। अच्छा, कि एक ही दिन में होती है कि आप मरहलावार कर सकते हैं? ये पूरा देखिए, आपको 10 साल जो मिलता है पीरियड, उसमें आपको इनुमिनेशन भी होती है, उसके अंदर डेटाबेस भी होते हैं, फिर अलग अलग कैटेगराइजेशन भी होती है। तो पहले ये करने के बाद फिर उसके बाद आप ट्रेनिंग करते हैं उन स्टाफ की। यहाँ पर ट्रेनिंग के नाम पर जो करोड़ों रुपया है वो खुर्द बुर्द होता है, क्योंकि उन्हें 3 दिन बुलाकर, मैंने कई बार ये नोट किया है, 3 दिन के लिए बुलाया जाता है उन प्राइमरी स्कूल टीचर की आप एबिलिटी को देख लीजिए गवर्नमेंट के अंदर, उसको 3 दिन की ट्रेनिंग उसके लिए क्या सफिशिएंट है, और उसमें फार्म पकड़ा दिया जाता है कि बेटा ये जाना है, अपने मोहल्ले घर घर जाकर घंटी बजानी है, और लोग वापस। बाद औकात ये होता है कि वो बॉदरेशन नहीं लेता, उसको कोई चेक भी नहीं करता, और जो उसके ऊपर सुपरवाइज़र है वो भी चूँकि जाके होटल में बैठ जाता है, चाय पीते हैं, कि अगर किसी फ्लैट के अंदर ताला लगा हुआ है या किसी मकान में, तो कल चले जाओ, परसों चले जाओ, या मोहल्ले वालों से पूछो कि ये परमानेंटली यहाँ से गए हुए हैं या यहाँ पर हैं, और मकानों के नंबर। इन चीज़ों में बहुत सारे घपले हो रहे हैं। 2010 में जब पोस्टपोन हुई थी, उसमें जो ये था कि सिंध के अंदर बहुत बड़ा एक फ्लड आया था, और उसके नतीजे में बहुत सारे कच्चे मकान। अच्छा, फिर एक और मसला भी है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक आबादी जो है वो जो है कच्ची आबादी है, बहुत बड़ी आबादी जो है वो खाना बदोश भी है, तो इसके लिए, लेकिन आप उसका जो है फ्लो जो है वो शहरों से लेकर देहात की तरफ जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये मुख्तदिर साहब देखें, फिर वो थोड़ी अजीब सी बात हो जाएगी, ऐसा लगेगा बहस बराए बहस है, लेकिन यहाँ से कोई जाना नहीं चाहता ना। देखें, मेन सिटीज में तो सभी रहना चाहते हैं। नहीं, मैं रहने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उसकी बात कर रहा हूँ, प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, कि प्रोसेस जो एनालिसिस आप इस तरह करें कि पहले शहरों को आप जो पक्के मकानात को काउंट कर लें, शहर के, उसके बाद उसके जाके देहाती इलाकों में कर लें, और उसका जो है एक स्टाफ परमानेंट ट्रेन रखें। दुनिया भर के अंदर ये हो रहा है, इसी स्टाफ को यू कैन यूज इन इलेक्शंस, उसकी ट्रेनिंग इलेक्शन के लिए करें, है ना। तो अब वो होगा ये कि ये आपका एक परमानेंट स्टाफ होगा जो आपको पूरा का पूरा इस सेंसस के बारे से ट्रेंड होगा। कल को जब इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन के अंदर उसको आपका हेल्प आउट कर सकता है, और फिर पूरा जो साल उसने इनोमिनेशन करनी है, कैलकुलेशन करनी है, कंप्यूटर बैठ के डेटाबेस निकालनी है, कैटेगराइज करके चीज़ों को अलग अलग करना। तो ये काम इतना है कि एक परमानेंट स्टाफ इज रिक्वायर्ड, तो वो आपको रखना होगा। आपको खाली
जो है सेंसस कमिश्नर बैठा कर और सूबों में प्रोविंशियल कमिश्नर बैठा कर काम नहीं चल सकता, और उनको छोटा छोटा एक सेक्रेटरीट दे दिया, चंद अफसरों का स्टाफ दे दिया, चंद अमला दे दिया, क्लर्कों का, उस पर काम नहीं चलेगा। एक पूरा का पूरा आपको फील्ड स्टाफ परमानेंट, और ये दुनिया भर के अंदर हो रहा है, दुनिया भर के अंदर परमानेंट स्टाफ है जो ये काम करता है, जिसको कि अपॉइंट किया जाता है। जाहिर है हम मर्दमशुमारी के हवाले से बात करते हैं, बहुत डिटेल जाहिर है मुक्तदी साहब ने हमें बताई है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में भी ज़रूर इसको एक मरतबा टच करेंगे, लेकिन इस वक्त कराची के अंदर बाज़गश सुनी जा रही है लाहौर की तरह के वो उन मंसूबे जो कि ग्रीन लाइन मंसूबा है, जो मेट्रो मंसूबे हैं, जिसमें अभी मेरे पास काफ़ी सारा यहाँ पर डाटा मौजूद है, लेकिन मैं जाहिर है वक्त ज़ाया के बगैर मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ऑरेंज लाइन भी है, रेड लाइन्स भी हैं, इसके ऊपर पैसा भी लगाया जा रहा है, लेकिन कराची की नफ्सियात क्या है, कराची की रूह क्या है, कराची इस वक्त क्या मांग रहा है, इस शहर के अंदर मसाइल क्या हैं। बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से मैंने कहा कि बल्दियाती इलेक्शंस की बहुत ज़्यादा वावेलगी हुई और वो हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी तरह से हो गए, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है? ज़ाहिर है नामजद मेयर जो हैं वो ज़ाहिर है उनके पास इख्तियारात नहीं है। वज़ीर आला सिंध साहब को अभी हमने देखा जब वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लेकर आए तो वो सारे वो मंसूबे बता रहे थे जो कि ऑलरेडी पाइपलाइन का हिस्सा और वो उसके इनॉग्रेशन के लिए आए थे। मेयर का काम क्या है, कराची को कौन देखेगा? कराची को सब कहते हैं कि कराची हमारा है, लेकिन जब कराची में काम करने की बात होती है तो कोई दिखाई नहीं देता। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग हमने क्या सीखा।